So next is test of nitrate ion. नाइट्रेट आयन के केस में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से सॉल्ट को ट्रीट किया था, तो उससे पहले NO2 गैस इवॉल्व हुई थी। तो पहली रिएक्शन अगर लिखेंगे तो इट इज NO3 माइनस रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। उससे एक तो NO2 गैस बना था जो ब्राउन कलर गैस थी, साथ में ऑक्सीजन इवॉल्व हुई, सल्फेट आयन बना और वाटर फॉर्म हुआ। टिपिकल रेडॉक्स रिएक्शन है, आप चाहो तो बैलेंस करके लिख सकते हो। दिस द आउटकम एंड दिस इज ब्राउन कलर गैस। And then I said that intensity of this brown color increases when we add copper turning. So if we add copper turning, then this formation of NO2 becomes faster because of copper get oxidized to copper 2 plus. तो redox reaction में copper H2SO4 जो पहले NO3 माइनस को NO2 में कन्वर्ट कर रहा था और ऑक्सीजन बना रहा था, उसकी वजह तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना परफेक्ट नहीं था। बट इसी में अगर आप कॉपर ऐड कर दोगे तो कॉपर ऐड करने से क्या होगा कि कॉपर विल ऑक्सीडाइज टू कॉपर 2 प्लस and NO3 minus will easily reduce to NO, and then NO will be oxidized by the air and brown color vapors will be in high quantity. This NO will be oxidized by air, or better to say oxygen, will give you a brown color gas NO2. This was the preliminary test of nitrate ion. After this is confirmatory test is ring test. The confirmatory test we perform here is ring test. So next case you'll write brown ring test of nitrate ion. So in brown ring test, we'll take salt solution. In this we add concentrated H2SO4 and freshly prepared ferrous sulfate solution. We'll add salt, concentrated sulfuric acid and freshly prepared ferrous sulfate solution, and with this we'll observe brown ring at the junction of sulfuric acid and ferrous sulfate. At the junction of ferrous sulfate and sulfuric acid. इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि सॉल्ट सोल्यूशन में आपने पहले ही फेरस सल्फेट ऐड कर दिया होता है, फिर टेस्ट ट्यूब की साइड से हम लोग H2SO4 को स्लोली ऐड करते हैं, तो जहाँ सल्फ्यूरिक एसिड फेरस सल्फेट से जाके ऐड होता है वहाँ पे ब्राउन रिंग फॉर्म हो जाती है। तो दिस इज ब्राउन रिंग टेस्ट ऑफ नाइट्रेट आयन। So the procedure of the reaction is that nitrate ion when treated with sulfuric acid, which is concentrated, and in this Fe2 plus is present. So with this reaction, first Fe2 plus will oxidize to Fe3 plus, some part, it will form NO and SO4 2 minus. And the NO formed reacts with ferrous sulfate, which you have added up in the solution, little amount of water, and this NO will form a brown ring complex. This is FeH2O whole 5 NO SO4. This forms brown ring. And the most important thing about this complex, we've already studied the redox reaction chapter. इसमें जो NO होता है वो NO प्लस स्टेट में होता है और आयरन का ऑक्सीजन स्टेट +1 होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस कॉम्प्लेक्स के बारे में याद रखनी है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी ये चीज़ दोबारा पूछी जा सकती है, बस इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ठीक से याद रखना है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज +1 एंड NO इज ऑल्सो +1। यहाँ पे जो NO प्रेजेंट है वो NO प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है और आयरन अपना ऑक्सीजन स्टेट +2 से +1 में कन्वर्ट कर लेता है। दैट्स व्हाई इट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आयरन का ऑक्सीजन स्टेट बताओ, तो दिस ऑक्सीजन स्टेट शुड बी +1। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑक्सलेट आयन। Oxalate ion when treated with concentrated sulfuric acid, it produces carbon dioxide and carbon monoxide. Mixed convergences of colorless odorless gases is because of carbon dioxide, and carbon monoxide burns with blue flame at the mouth of the test tube. Now for its confirmatory test, what we'll do,
In the salt solution, we'll add calcium chloride. So salt solution plus calcium chloride, then it gives white precipitate of calcium oxalate. So calcium chloride, it gives white precipitate. This is the confirmatory test. So oxalate ion when treated with calcium chloride, it forms calcium oxalate CaC2O4, which is a white precipitate, right? Then you know that oxalate ion can be easily oxidized by KMnO4 or K2Cr2O7, so that test can also be performed. So if you take oxalate ion and you treat it with KMnO4 and dilute H2SO4, be careful for titration. We'll use dilute H2SO4 because HCl, HNO3 and concentrated H2SO4 is not preferred because they hampers the oxidation property. So it forms CO2 and Mn2 plus. And this pink solution of KMnO4 becomes colorless. So this is also a confirmatory test. And the same thing we can do with the potassium dichromate solution K2Cr2O7 with H2SO4. So dilute H2SO4, K2Cr2O7 solution is orange. And now after reaction it will form CO2 and Cr3 plus. And because of the Cr3 plus, this solution is green. So if salt solution converts dichromate ion solution from orange to green, then it is oxalate ion. Pink to Mn2 plus, it can be oxalate ion. Otherwise, confirmatory test is we'll do it with calcium chloride solution, and it will give you a white precipitate. Yeah. Then come to Sir, the spatial group. Yes. So next theoretical is sulfate ion. Then for the test of sulfate ion, what we do in the salt solution, we add BaCl2 solution. So if you add BaCl2, it will form barium sulfate, white precipitate. Or better to say, first you write the observation, so it will form a white precipitate. And one important thing is there with this white precipitate that it is insoluble in all mineral acids. So you can write in terms of equation, it is sodium sulfate, let's say salt. इसको BaCl2 से react कराया, तो इससे form हुआ barium sulfate and 2NaCl. This barium sulfate is white precipitate, insoluble in all the mineral acids. ये important point है, अलग से लिख लीजिए. Barium sulfate is insoluble in all mineral acids. Barium sulfate is insoluble in all mineral acids. फॉस्फेट आयन के टेस्ट के लिए हमने सोडियम फॉस्फेट की रिएक्शन HNO3 से कराई. फॉस्फेट आयन के टेस्ट के लिए हमने सोडियम फॉस्फेट की रिएक्शन HNO3 से कराई और उससे सबसे पहले देखो फॉस्फोरिक एसिड बना. फिर फॉस्फोरिक एसिड की नेक्स्ट स्टेप पे रिएक्शन कराई अमोनियम मॉलिब्डेट से और अमोनियम मॉलिब्डेट से रिएक्शन कराने के बाद कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आता है. अब इसी चीज़ को रिएक्शन के टर्म में देखेंगे. सबसे पहले तो हमने क्या करा कि Na3PO4 सॉल्ट लिया, उसकी रिएक्शन HNO3 से कराई, इट फॉर्म्स H3PO4. फिर H3PO4 की रिएक्शन अमोनियम मॉलिब्डेट से हुई, तो उससे नेट आउटकम आया आपका अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट विच इज कैनरी येलो प्रेसिपिटेट, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर. इस इक्वेशन को लर्न करने की ट्रिक ये है कि आप देखो इस इक्वेशन में सारे कोफिशिएंट जो है वो 1,2 और 2,1 के फॉर्म में है. तो इफ आई एक्सप्लेन यू केयरफुली, जस्ट नोटिस मैंने कलर्स के साथ लिखा हुआ है. सबसे पहले आप ध्यान से देखो कि जो अमोनियम आयन है ग्रीन कलर से मैंने मार्क किया, सो दैट इज 24 अमोनियम आयन. राइट साइड में फॉस्फेट के साथ सॉल्ट बनाएंगे तो 3 अमोनियम आयन तो फॉस्फेट के साथ गए, रेस्ट 21 आयन देखो अमोनियम नाइट्रेट में गए. तो 21 अमोनियम नाइट्रेट चले गए तो हमें नाइट्रेट आयन 21 चाहिए होगा, तो वी हैव टेकन 21 HNO3. अब उसका जो 21H है और जो फॉस्फोरिक एसिड के 3H है वो तीनों क्लब हो गए 24H हो गए, जो कि 12 वाटर में गए, वहाँ 24H बैलेंस हो गया, राइट. अब हमारे पास जो मॉलिब्डेट आयन है MOO4 12 यूनिट्स है, उसको अमोनियम फॉस्फेट के साथ ऐड कर दो, बट वाटर बनाने के लिए 12 ऑक्सीजन अलग से रिक्वायर्ड है, तो MOO4 में से एक ऑक्सीजन कम कर दो, सो विल राइट 12 MOO3. सो अमोनियम फॉस्फेट मॉलिब्डेट इज NH4 whole thrice PO4 dot 12 MOO3. This is ammonium phosphomolybdate and its color is canary yellow precipitate.
This is test of phosphate ion, right? Clear? So this canary yellow precipitate is ammonium phosphomolybdate. Next test is of fluoride ion. In case of fluoride ion, salt when treated with concentrated H2SO4, colorless corrosive gas H2F2 is formed. When gas fumes comes in contact with moisture, the test tube acquires greasy appearance. This is test for fluoride ion. तो यहाँ पे एक important point सबसे पहले आपको learn करना है कि HF is the only acid reacts with glass. HF is only acid reacts with glass. तो इससे आपको इसकी पूरी reaction का idea लग जाएगा. So HF is the only acid which reacts with glass. Glass पे जितनी भी etching करनी होती है, जितने भी डिजाइन बनाने होता है, that is all because of HF. ठीक है. दूसरा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट एग्जिस्ट इन डाइमरिक फॉर्म एट लो टेम्परेचर एंड मोनोमरिक फॉर्म एट हाई टेम्परेचर. अगला पॉइंट और लिख लीजिए. ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग it exists as dimer at low temperature and monomer at high temperature. और हाई टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर ग्रेटर देन 90 डिग्री सेल्सियस. अगर टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर कर दिया जाता है तो फिर इसकी मोनोमरिक फॉर्म मिलती है. 90 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर पे ये डाइमरिक फॉर्म में मिलता है. और नॉर्मली ये वोलेटाइल लिक्विड होता है, अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस पे एवापोरेट होना स्टार्ट कर देता है. तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर के फॉर्म में याद रखना है. सो इट एग्जिस्ट एज H2O2. इसलिए मैंने देखो ऊपर गैस लिखा है H2O2. जब तक आप बहुत हाई टेम्परेचर नहीं करेंगे तब तक HF नहीं लिखा जाता. तो अब अगर रिएक्शन के टर्म में लिखूँ मैं आपके लिए, बेसिकली टेस्ट के फॉर्म में लिखा जाए तो सोडियम क्लोराइड अगर हमने सॉल्ट लिया, इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराई तो पहले H2F2 फॉर्म हो रहा है. देन दिस H2F2 रिएक्ट्स विद सिलिका. सो जो ग्लास होता है उसमें मेजरली सिलिका प्रेजेंट होता है SiO2. वो HF से रिएक्ट कर जाता है and it forms SiF4, राइट. और SiF4 को अगर हम मॉइस्ट ग्लास रॉड के कांटेक्ट में लाते हैं तो दिस SiF4 प्लस मॉइस्ट ग्लास रॉड, if this SiF4 comes in contact with moist glass rod, then it forms vapors of silicic acid which is of gelatinous color. So you can write vapors of silicic acid. Vapors of silicic acid and this is of gelatinous appearance. So this confirms the test of fluoride ion. So if I write in terms of equations, then the SiO2 reacts with H2F2 will form SiF4, and if moisture is also present then this SiF4 reacts with this moisture and it produces H2SiF6. Sorry, and it produces H2SiF6, obviously one substance, and H2SiO3. H2SiO3 is silicic acid and some H plus. This is silicic acid which has gelatinous appearance, and this is a complex salt of H2SiF6, and this is test of fluoride ion. So SiF4 is glassy mass
and with moisture this converts to silicic acid, which is gelatinous appearance, and H2SiF6. Next test we'll write is for borate ion. For test of borate ion, we'll perform actually flame test. So what we do is that borate salt is treated with sulfuric acid and alcohol, and then it produces green as flame in the Bunsen burner flame. This is test of borate ion. Okay. So for test of borate ion, first it is treated with concentrated sulfuric acid that actually forms boric acid, and this boric acid is treated with ethyl alcohol, or you can use methyl alcohol also, but commonly preferred because volatile character of ethyl alcohol is higher, so that is we use ethyl alcohol. And ethyl alcohol reacts with borate, forms ethyl borate, and that bursts with green as flame. So this is test of borate ion. If you wish to write in chemical equations, so borate ion first treated with H2SO4, or sometimes with moisture also it will convert to boric acid, depends. So concentrated sulfuric acid, it forms boric acid, H3BO3 and sulfate ion. Then this H3BO3 is treated with ethyl alcohol, C2H5OH, 3 units, and it will form ethyl borate, which burns with green as flame. This substance is important, ethyl borate. तो यहाँ पे ethyl borate form हो रहा है, वो green as flame के साथ burn करेगा. This is confirmatory test for borates. इसके बाद हम लोग बेसिक रेडिकल से टेस्ट फॉलो करते हैं. In case of basic radicals, first we perform some dry test. So next हम लिखिए basic radicals. In case of basic radicals, first we perform some dry tests. Like the most common test over here is flame test. यहाँ सबसे कॉमन टेस्ट हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको हम लोग फ्लेम टेस्ट बोल रहे हैं. तो सबसे पहले फ्लेम टेस्ट लिखिए आप. आपने इस लॉग एलिमेंट्स में पढ़ा होगा इसको. All alkali metals and alkaline earth metals except beryllium and magnesium performs flame test. और ऐसा इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी की वजह से होता है. तो इस पॉइंट को लिखिए. All alkali metals and alkaline earth metals except beryllium and magnesium performs flame test. So I said all alkali metals and alkaline earth metals except beryllium and magnesium performs flame test in Bunsen's burner flame. This is due to their low ionization energies. फ्रांसियम और रेडियम भी फ्लेम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बट हम उसे अवॉइड करते हैं ड्यू टू देयर रेडियो एक्टिव कैरेक्टर और ड्यू टू देयर रेडियो एक्टिविटी. तो इस वजह से उनका फ्लेम टेस्ट नहीं कर परफॉर्म करते हैं. तो केवल बेरिलियम और मैग्नीशियम को अल्कली मेटल और अल्काइन अर्थ मेटल सीरीज में छोड़ दो, तो बाकी सब फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं. आप उनके कलर्स लिख लो सबके फटाफट. सो वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. In case of lithium, it is crimson red. In case of sodium, it is golden yellow, or simply yellow also can be written. पोटेशियम के लिए हम लोग वॉयलेट या लिलैक लिखते हैं. लिलैक और वॉयलेट भी चलेगा. रुबिडियम के केस में इट इज वॉयलेट. फॉर सीजियम इट इज स्काई ब्लू. Then if we go for beryllium and magnesium, no flame test. क्योंकि इनकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है. इसके अलावा फिर बाकी सारे अल्कालाइन अर्थ मेटल्स फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करते हैं. नो फ्लेम टेस्ट ड्यू टू हाई आयोनाइजेशन एनर्जी. ऑल्दो ये परफेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट बोल सकते हैं अगर आयोनाइजेशन एनर्जी हायर है तो अगर मान लो हमने बंसेस बर्नर फ्लेम की जगह हाई टेम्परेचर प्रोवाइड भी करा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद जब डी एक्साइट होगा तो वो विजिबल रीजन की वेवलेंथ इमिट नहीं करेगा, इसलिए फ्लेम टेस्ट नहीं आता है. तो ये पार्शियल रीजन बोल सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी हायर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराना मुश्किल है. बट अगर एक्साइट करा भी दिया किसी प्रोसेस से, तो जो फोटोन इमिट होगा दैट डज नॉट बिलोंग टू विजिबल रीजन, इसलिए फ्लेम टेस्ट नहीं आता. कैल्शियम के केस में ब्रिक रेड. स्ट्रॉन्शियम के केस में फिर से क्रिम्सन रेड. और बेरियम के केस में इट इज एप्पल ग्रीन.
These are the flame tests for different alkali and alkaline earth metals. So borax bead test is another flame test जो perform करते हैं dry test में. So in this test we'll do heating of borax which is Na2B4O7 dot 10H2O. This is your borax. जब हम बोरेक्स को हीट करते हैं तो उससे दो सब्सटेंस बनते हैं, सोडियम मेटाबोरेट Na BO2 and boric anhydride B2O3. This is called sodium metaborate and this is boric anhydride. और ध्यान रखना है कि बोरेक्स बीट टेस्ट के लिए दोनों सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि हम केमिकल रिएक्शन में B2O3 यूज करते हैं तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. और बोरेक्स बीट टेस्ट बोथ द सब्सटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल Na BO2 एंड B2O3. तो ये चीज़ अलग से याद रखनी है, कंफ्यूज मत होइएगा कभी गलती से भी. इसके बाद अगर बोरेक्स बीट टेस्ट परफॉर्म कराना है, जैसे कॉपर सल्फेट के साथ ये टेस्ट परफॉर्म किया हमने, तो कॉपर सल्फेट को अगर फ्लेम में हीट कर रहे हैं इट विल फॉर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड एंड SO3. और फिर जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है ये B2O3 के साथ रिएक्ट करके मेटाबोरेट फॉर्म करता है. सो इट फॉर्म्स क्यूप्रिक मेटाबोरेट CuBO2 होल ट्वाइस, और ये फ्लेम में ब्लू फ्लेम क्रिएट करता है. So this is referred as borax bead test. This compound is cupric metaborate. Cupric metaborate. तो दो बातें borax bead test में याद करनी है. Borax bead test is because of sodium metaborate and boric anhydride, and the substance formed in borax bead test is metaborates. तो उसमें सबसे पहले जो कॉमन टेस्ट है वो कॉपर के लिए पूछा जाता है, वही आप नोट कर लीजिए. सो बोरेक्स बीट टेस्ट के केस में कलर्स अलग अलग आते हैं. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ अलग कलर होता है, रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ अलग कलर होते हैं. उसमें जो सबसे कॉमन फॉर्म हम लोग याद करते हैं दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कोल्ड कलर्स. मेजरली यही टेस्ट किया जाता है. अदरवाइज इट इज टेस्ट पॉसिबल फोर मैनर, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के साथ, एक रिड्यूसिंग फ्लेम के साथ, एंड दैट टू अगेन हॉट एंड कोल्ड कंडीशन. तो जिसमें आपको लर्न कर लेना है वो ये 5 कलर कम से कम लर्न कर लेना है. कॉपर के लिए ब्लू, आयरन के लिए पेल येलो, क्रोमियम के लिए ग्रीन, कोबाल्ट के लिए ब्लू एंड निकल के लिए ब्राउन. कम से कम इतना लर्न कर लिया जाता है, अदरवाइज आप जितना मैक्सिमम से याद रख सकते हो दैट विल बी हेल्पफुल, बिकॉज इन द क्वेश्चन दिस विल बी अ क्लू, बट अदर देन दिस अदर क्लूज आर ऑल्सो अवेलेबल. तो आप उससे भी प्रोडिक्ट कर सकते हो. जितना डेटा याद होगा उतनी जल्दी सवाल करने में आपको हेल्प मिलेगी. अब बेसिक रेडिकल्स में सबसे पहले हम लोग जीरो ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं. जीरो ग्रुप में हम अमोनियम आयन, सोडियम एंड पोटेशियम चेक करते हैं. सोडियम और पोटेशियम जनरली फ्लेम टेस्ट से आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो टेस्ट जो करना पड़ता है वो केवल अमोनियम आयन के लिए करना होता है. तो अमोनियम आयन के टेस्ट में आपके पास कोई भी अगर अमोनियम सॉल्ट है और इसको आप NaOH से ट्रीट कराते हैं तो यहाँ से स्मेल ऑफ अमोनिया चेक होती है. और अमोनिया की अपनी एक पंजेंट स्मेल होती है जिससे इसको इजीली प्रिडिक्ट किया जा सकता है. तो अमोनिया की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है जिससे इसे आइडेंटिफाई किया जाता है. तो सॉल्ट में अगर आप NaOH ऐड कर रहे हैं और स्मेल ऑफ अमोनिया आ रही है तो इट इज अ प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर अमोनियम आयन्स. उसके बाद एक ग्लास रॉड को डिप करके अगर इस अमोनिया के ग्लास रॉड डिप्ड इन HCl को अमोनिया के कांटेक्ट में लाते हैं तो उससे वाइट फ्यूम्स ऑब्जर्व होती हैं. अगले केस में लिख लो ग्लास रॉड dipped in HCl when comes in contact with ammonia it forms white fumes. It forms white fumes, और जो white fumes यहाँ पे फॉर्म होती हैं that is of NH4Cl. अब इसको रिएक्शन के टर्म में लिख लो. सबसे पहले हमने अमोनियम आयन लिया, इसकी रिएक्शन NaOH से करी तो इससे फॉर्म हुआ Na प्लस वाटर एंड अमोनिया गैस. और इस अमोनिया गैस की रिएक्शन HCl से हुई तो इससे NH4Cl के वाइट फ्यूम्स फॉर्म हुए. दिस यू कैन से अ प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर अमोनियम आयन. कॉमनली इतने से ही टेस्ट हो जाता है, बट अगर इसके आगे कभी इसको कंफर्मेटरी टेस्ट तक ले जाना पड़े वी परफॉर्म अ टेस्ट नोन एज नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट. अपना टेस्ट लिखेंगे नेस्लर्स रिएजेंट टेस्ट.
Nestle's reagent test. तो Nestle's reagent को अगर हम अमोनियम सॉल्ट से ट्रीट करते हैं तो ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट बनता है. Nestle's reagent is alkaline K2HgI4 reaction and the brown precipitate is formed because of iodide of Millin's base. If you write the complete reaction, it is NH4 plus K2HgI4 in the alkaline medium, so let's say KOH. Then the product formed over here is NH2 HgOHgI. बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, जे एडवांस में बहुत बार ये सवाल आ चुका है. दिस इज NH2HgOHgI. दिस कंपाउंड इज नोन एज iodide of Millin's base. Iodide of Millin's base and it's a brown precipitate. This is test of ammonium ion. और देखो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डेटा और मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूँ. अमोनियम सॉल्ट्स को नॉर्मली हीट करने से अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है. केवल 3 सॉल्ट ऐसे हैं जो अमोनिया नहीं प्रोड्यूस करते, विच इज अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट एंड अमोनियम डाइक्रोमेट. तो उसमें देखो आप आसानी से इस चीज़ को पहचान सकते हो कि जो सॉल्ट का एनाइनिक पार्ट है वो एक्चुअली में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. यहाँ पे देखो नाइट्राइट आयन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए फर्दर जो अमोनिया फॉर्म होने वाली थी वो ऑक्सीडाइज हो जा रही है और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बनती है. तो हियर प्रोडक्ट इज नाइट्रोजन एंड वाटर. अमोनियम नाइट्रेट में देखो नाइट्रेट आयन है विच इज मच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन नाइट्राइट आयन. तो जब ये और स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये और एक स्टेप तक ऑक्सीडाइज करेगा. यहाँ पे लाफिंग गैस बनती है N2O. N2O is referred as laughing gas, and along with this we'll get water. And the third substance is ammonium dichromate. यहाँ पे भी सेम लॉजिक देखो, डाइक्रोमेट आयन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी फर्दर ऑक्सीडाइज होकर नाइट्रोजन गैस बना रहा है. इट फॉर्म नाइट्रोजन, Cr2O3 एंड वाटर. ठीक है, तो इससे आप आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे कि Cr2O7 बन रहा है. कि यहाँ पे आसानी से जो ऑक्सीडाइजिंग अगर एराइन है तो उसका मतलब उसको फर्दर अमोनिया नहीं बनाना है, किसी दूसरे प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज करेंगे. ये 3 मेन रिएक्शन है जो मैंने आपको बता दी. अब इसमें देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है जो समझना है. एक्चुअली में जो N2O होता है इसको अगर हम हीट करते हैं तो उसके हीट करने से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनती है. और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बनने से आपको समझ में आ रहा है कि ये कॉम्पोनेंट ऑफ एयर है. तो कई बार क्वेश्चन के क्लू के फॉर्म में होता है, अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस अ गैस व्हिच अगेन फर्दर हीटिंग प्रोड्यूसेस कंपोनेंट्स ऑफ एयर. तो क्लियरली पता चल जाता है कि N2O और अमोनियम नाइट्रेट की बात हो रही है. और इस वजह से जो N2O गैस है ये कंबशन में सपोर्ट करती है, सपोर्ट्स इन कंबशन. नॉर्मली अगर लिख के आएगा गैस सपोर्ट्स इन कंबशन तो उसका आंसर ऑक्सीजन ट्राई किया जाता है. बट अगर ऑक्सीजन नहीं फिट हो रहा है तो इसका दूसरा आंसर पॉसिबल होता है N2O. तो दीज आर द क्रिटिकल क्लूज जो टफ सवाल डील करने में हेल्प करते हैं, इसलिए आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ. अब N2O के लिए एक और प्रॉपर्टी बोली जाती है, न्यूट्रल ऑक्साइड है. तो आपको पता है कि हम लोग केमिस्ट्री में 4 न्यूट्रल ऑक्साइड यूज़ करते हैं, तो सब आपको एक साथ ही बता दे रहा हूँ. दिस इज N2O, NO, वाटर एंड CO. तो N2O के लिए 3-4 क्लू हैं. लाफिंग गैस बता सकते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड बोल सकते हैं, सपोर्ट्स फॉर कंबशन बता सकते हैं. ठीक है, तो ये अपने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है. तो ये सब वो क्लूज हैं जिनसे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी, तो उनको डायरेक्टली लर्न कर लेना है. ठीक है, N2O सपोर्ट्स फॉर कंबशन बिकॉज इट ऑन हीटिंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. सो अब बेसिक रेडिकल्स को हम फर्दर 6 ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, based on solubility or solubility product, basic radicals are arranged in 6 different groups in the increasing order of solubility products. अब आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसमें ग्रुप, उसके रेडिकल, रिएजेंट्स और प्रेसिपिटेट्स लिखने हैं. बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इस चैप्टर का. सो ड्रॉ टेबल नाउ. तो सबसे पहले वी आर राइटिंग ग्रुप 1. ग्रुप 1 radicals are lead,
मर्क्यूरस Hg2 2+ एंड सिल्वर। तीन बेसिक रेडिकल हम लोग ग्रुप 1 में फॉलो करते हैं, Pb2+, Hd2 2+ एंड Ag+। इस ग्रुप में जो रिएजेंट होता है दैट इज डाइल्यूट HCl, यानी कि सारे के सारे रेडिकल्स करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स के फॉर्म में प्रेसिपिटेट किए जाते हैं। सो द प्रेसिपिटेट फॉर्म्स आर PbCl2, Hg2Cl2 and AgCl, and these all three precipitates are white precipitates. All three precipitates are white precipitates. Next we classify in group 2, and group 2 is further divided into two subgroups, group 2A and group 2B. Group 2A basic radicals are actually group 2 basic radicals precipitates are insoluble in yellow ammonium sulfide, whereas group 2B is soluble in yellow ammonium sulfide. अभी ये डिटेल लिखेंगे, बट पहले रेडिकल्स लिखो। तो ग्रुप 2A कंटेन्स लेड, मर्क्यूरिक Hg2+, and then it contains copper 2+. Further it is bismuth 3+ and cadmium 2+. Whereas group 2B contains arsenic, antimony एंड टिन। टिन के दोनों फॉर्म यहाँ पे इंक्लूड किए जाते हैं, टिन 2+ एंड टिन 4+, एक साथ ही यहाँ पे टेस्ट किए जाते हैं। इसका जो ग्रुप रिएजेंट है दैट इज H2S विद डाइल्यूट H2S प्लस डाइल्यूट HCl। तो आपको पता है यहाँ पे HCl की वजह से H2S पे कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई करते हैं। ये चीज़ आप लोगों ने आयनिक थ्योरम के टाइम पे पढ़ी हुई है। कॉमन आयन इफेक्ट लगा के सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करते हैं, तो उससे केवल ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट होता है। फिर ग्रुप 4 में पहुंचेंगे तो वहाँ पे भी रिएजेंट जो है वो H2S ही होता है, बट फॉर ग्रुप 4 मोर सल्फाइड आयन विल बी नीडेड, तो वहाँ पे मीडियम अल्कलाइन कर देते हैं। अभी उसको सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे, पहले आप सब प्रेसिपिटेट्स लिख डालो। तो यहाँ प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है लेड सल्फाइड, मरकरी सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड। ये आपके तीनों प्रेसिपिटेट्स ब्लैक कलर के होते हैं। तीनों प्रेसिपिटेट्स ब्लैक कलर के होते हैं। इसके बाद अगला प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होगा दैट इज बिस्मथ सल्फाइड Bi2S3 एंड कैडमियम सल्फाइड। बिस्मथ सल्फाइड जो है ये ब्राउन प्रेसिपिटेट होता है और कैडमियम सल्फाइड येलो प्रेसिपिटेट होता है। फर्दर ग्रुप 2B के प्रेसिपिटेट्स लिखेंगे, तो इट इज आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, Sb2S3, SNS और SnS2। ये चार प्रेसिपिटेट्स हो गए, तो इट इज AS2S3, Sb2S3, SNS और SnS2। ये प्रेसिपिटेट्स हुए। यहाँ पे जो AS2S3 है ये येलो प्रेसिपिटेट होता है, Sb2S3 जो है ये ऑरेंज प्रेसिपिटेट होता है, SNS जो है ये आपका ब्लैक कलर प्रेसिपिटेट होता है, या ग्रे लिख सकते हो आप बेसिकली, दिस इज ब्लैक, एंड SnS2 जो है वो येलो होता है। तो चूंकि हम दोनों साथ साथ टेस्ट करते हैं तो फाइनली ग्रे भी लिखा जा सकता है कई बार, ठीक है। इसके बाद ग्रुप 3 में चलेंगे, तो ग्रुप 3 कंटेन्स आयरन, क्रोमियम एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इज ग्रुप 3। ग्रुप 3 contains Fe3+, Cr3+, and Al3+. Group reagent over here is ammonium hydroxide plus NH4Cl. Again, common ion effect of NH4Cl to regulate hydroxide and concentration. So NH4OH plus NH4Cl combination is group reagent here. So your precipitates are in the form of hydroxide. So we'll get ferric hydroxide, chromium hydroxide, and aluminum hydroxide. Ferric hydroxide is reddish brown. Chromium hydroxide is green.
and aluminum hydroxide is white, or you may write gelatinous white. These are the precipitates. Okay. Then comes group 4. Group 4 contains nickel, cobalt, zinc, and manganese. And here group reagent is H2S with NH4OH. तो अब आप यहाँ देख सकते हो कि अल्कलाइन मीडियम क्रिएट कर दिया है, सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर हो जाएगी। ग्रुप 4 के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो इसके लिए हमें सल्फाइड आयन ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी प्रेसिपिटेशन के, तो हमने यहाँ मीडियम देखो अल्कलाइन किया हुआ है। And here precipitates are again in the form of sulfide. So nickel sulfide, cobalt sulfide, zinc sulfide, and manganese sulfide. So nickel sulfide and cobalt sulfide are black. Zinc sulfide is white, or you can write gelatinous white. Zinc sulfide is white. And mercury sulfide is pink, और perfect लिखना है तो it is buff colored. Normally हम pink लिख लेते हैं, लेकिन अगर बहुत प्रिसाइसली समझना हो तो मैग्नीज सल्फाइड इज buff colored, or you can say light pink. तो either pink और buff color depend upon the question, जैसे लिख के आएगा दोनों केस में डील करना आना चाहिए आपको. So you can write pink or it is buff colored. इसके बाद ग्रुप नंबर 5. ग्रुप नंबर 5 contains barium, strontium and calcium. Here group reagent is ammonium carbonate, and all are precipitated in the form of carbonates: barium carbonate, strontium carbonate, and calcium carbonate. And these all three are white. In the last case, group 6, this contains magnesium. Group reagent is ammonium hydrogen phosphate, and the precipitate is of magnesium hydrogen phosphate, and this is a white precipitate. Okay. अब देखो, उसको लर्न करने के लिए अगर ट्रिक सेट करनी है तो आप क्या करना है, एक टेबल अपने लिए और बनाना जिसमें बेस्ड ऑन देयर कलर्स हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे. तो आप देखो, सबसे पहले ब्लैक वाली कैटेगरी एक साथ कर लो. तो देखो, ये 3 प्रेसिपिटेट ब्लैक यहाँ पे है, एक ब्लैक यहाँ पे है, और 2 ब्लैक यहाँ पे है. तो पहले ब्लैक वाले सब एक साथ कर लिए. उसके बाद वाइट वाले प्रेसिपिटेट के बारे में अगर ध्यान से देखोगे तो ये 3 प्रेसिपिटेट वाइट है. हल्का सा कलर मार दे रहा हूँ, या कलर नहीं, आप ध्यान से देख लो. तो वाइट वाले केस आपको समझ में आ रहे हैं, 3 वाइट यहाँ पे है. उसके बाद नीचे जाके देखोगे तो जिंक वाइट है, एल्यूमिनियम वाइट है, और नीचे वाले ग्रुप 6 एंड 5 एंड 6 भी वाइट है, यानी ग्रुप 1, 5, 6 तो तीनों वाइट हो गए डायरेक्टली. आफ्टर दैट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये और वाइट प्रेसिपिटेट हो गए. ठीक है. अब इसके बाद देखो सिलेक्टिव कलर्स बच रहे हैं, उनको अगर आप ध्यान से देखते जाओगे तो जैसे देखो Bi2S3 ब्राउन है. उसके बाद येलो वाली कैटेगरी देखेंगे तो कैडमियम सल्फाइड, AS2S3 और SnS2, 3 येलो प्रेसिपिटेट हो गए. उसके बाद ऑरेंज वाली कैटेगरी में देखेंगे तो Sp2S3. उसके बाद देखेंगे तो रेडिश ब्राउन कैटेगरी में आयरन, ग्रीन इज क्रोमियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन मैग्नीज ऑक्साइड इज पिंक, मैग्नीज सल्फाइड इज पिंक. बाकी सब तो आपको देख ही सकते हैं, वाइट ब्लू ज़्यादातर वाइट है. तो आप आसानी से सबको कलर्स के साथ अगर एक बार सेग्रीगेट कर लोगे तो उसको लर्न करना बहुत आसान हो जाता है. यहाँ पे देखिए येलो अमोनियम सल्फाइड लिया हमने सबसे पहले. तो येलो अमोनियम सल्फाइड मतलब पहले अमोनियम सल्फाइड लिखो, NH4O2S, और उसमें एक्स्ट्रा सल्फर ले लो, तो येलो अमोनियम सल्फाइड. तो इस येलो अमोनियम सल्फाइड में देखो ग्रुप 2A के जो सल्फाइड्स हैं वो इनसॉल्युबल हैं, और ग्रुप 2B के जो सल्फाइड्स हैं वो सॉल्युबल हैं. ठीक है. तो अगर आप येलो अमोनियम सल्फाइड के केस से डील करेंगे तो येलो अमोनियम सल्फाइड में ग्रुप 2A सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल, ग्रुप 2B सल्फाइड्स आर सॉल्युबल. तो येलो अमोनियम सल्फाइड हो गया. उसके बाद देखो ग्रुप 2 में हम लोगों ने H2S और HCl यूज किया है. इन ग्रुप 2 common ion effect of HCl in group 2
common ion effect of HCl regulates concentration of sulfide ion to precipitate to selectively precipitate group 2 basic radicals. To selectively precipitate group 2 basic radicals. ठीक है, इसके बाद ग्रुप 3 में देखो, इन ग्रुप 3 कॉमन आयन इफेक्ट of NH4Cl regulates concentration of OH minus to selectively precipitate group 3 basic radicals. और ध्यान से नोटिस करो, ग्रुप 2 के केस में HCl का कॉमन आयन इफेक्ट सल्फाइड आयन पे अप्लाई हो रहा है, तो केवल सेलेक्टिवली ग्रुप 2 प्रेसिपिटेट हो रहा है। ग्रुप 3 के केस में NH4Cl का कॉमन आयन इफेक्ट NH4OH पे लग रहा है, इससे OH माइनस आयन रेगुलेट हो रहा है और सिलेक्टिवली ग्रुप 3 प्रेसिपिटेट कर रहा है। ये दो बातें यहाँ पे सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन की लगा देनी है। ग्रुप 4 में देखो H2S NH4OH ले लिया तो सल्फाइड आयन सिग्निफिकेंटली गुड हो गई है। तो अगर आपने ग्रुप 2 पहले नहीं चेक करा है तो ग्रुप 4 के टाइम पे ग्रुप 2 और 4 दोनों एक साथ प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। ठीक है, जो रिएजेंट ग्रुप 4 प्रेसिपिटेट कर सकता है वो ग्रुप 2 डेफिनेटली प्रेसिपिटेट कर देगा, राइट। अब हमें इंडिविजुअली एक एक ग्रुप के टेस्ट स्टडी करने, दैट विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर।